Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do question number 5 and 6 of exercise 7.1. Let's start. Now in question number 5, line L is the bisector of angle L. Line L is the bisector of angle L and B is any point on L. Clear? And BQ are BP and BQ. This is BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Angle A जो ये बन रहा है, इसकी जो arms है, इसके ऊपर ये perpendicular है. Show that triangle APB, this triangle is congruent to triangle AQB. Clear? Firstly, we will start with given. Now, given is angle QAB. ये एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. इट मीन्स ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्लियर? तो एंगल QAB इक्वल टू है एंगल BAP के. Clear? Next, B is a point on L and these are the perpendicular BP and BQ. Then we can write BP is perpendicular on A. ये लाइन जो है इसका नाम हम रख देते हैं M and N. Then BP is perpendicular on AN. कैपिटल में रख लेते हैं इनको. एंड BQ is perpendicular on AM. BQ perpendicular on AM. This is given. Now to prove, what we have to prove? APB, triangle APB congruent to triangle AQB. Now proof. In triangle APB and triangle AQB. अब इस ट्रायंगल में देखो, ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री है. वाई? बिकॉज BP and BQ परपेंडिकुलर्स हैं ऑन द आर्म्स ऑफ A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इसकी जो आर्म्स है आर्म मीन्स AM और AN पे. तो दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो हम इसको लिखेंगे एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज गिवन. ये हमें दिया हुआ है, चाहे तो आप लिख सकते हैं एंगल QAB इक्वल टू एंगल BAP गिवन 90 डिग्री. क्लियर? एंगल के बाद ये साइड ये हमारी हो गई. अब हम नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? ये दिस लाइन AB इक्वल टू BA. AB इक्वल टू BA इक्वल होंगी क्योंकि दिस इज बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, ये इक्वल होंगी फिर दोनों लाइंस. तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन. एंगल साइड अगेन एंगल हमारा बाइसेक्टर है, इक्वल होगा. तो QAB एक सेकेंड, ये जो हमने लिखा है QAB ये यहाँ पे हमने गलत लिखा. ये एंगल जो हमारा ये बनेगा AQB बनेगा क्योंकि दिस इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे हम ओनली Q से ही मेंशन कर देंगे इसे हम. एंगल Q इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री हो गया. अब AB इक्वल टू BA कॉमन हो गई लाइन. नेक्स्ट फिर से हम क्या लेंगे? एंगल साइड एंगल QAB इक्वल टू BAP. दिस इज गिवन. तो लिख देंगे एंगल QAB इक्वल टू
angle BAB. This is also given. If angle side angle equal है, then this implies triangle APB congruent to triangle APB congruent to triangle AQB. AQB. और rule, which rule? By angle side angle. Clear? तो लिख देंगे by angle side angle rule. Clear? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूफ. अब सेकंड पार्ट में हमारे को क्या प्रूव करना है? BP इक्वल टू है BQ के, या फिर B is the equidistance from the arms of angle A. क्लियर? कि B, इसकी जो आर्म्स हैं B इनसे इक्विडिस्टेंट पे है. कौन सी आर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे? ये वाली, कि B इक्विडिस्टेंट पे है. देन Q is at the equidistance from B and P is as the equidistance from B. We have to prove this. ठीक है? Or we can say BQ equal to BP. First we start with given to prove and prove. ठीक है? तो already we have written the given. Then prove क्या करना है? We will write this. यहाँ लिख देंगे to prove BP equal to BQ and prove if triangle AQB congruent to triangle APB है तो already proved किया हमने ऊपर, already proved above. So by CP/CT congruent parts of congruent triangle, congruent triangles के congruent parts भी equal होंगे. Then BQ equal to BP. Hence proved. Now question number 6 is AC equal to AE given है. AC equal to AE, AC equal to AE and AB equal to AD and angle BAD. This angle is equal to EAC. Show that BC equal to DE. BC equal to DE. Clear? तो अब हम इसमें सबसे पहले we will start with given. Again जो AC equal to A जो given है वो लिखते जाएंगे. AB equal to AD and angle BAD equal to angle EAC. To prove BC equal to D. अब proof angle BAD ये एंगल, अब हमें गिवन क्या एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. बट देखिए अगर हम ट्रायंगल्स लेते हैं, क्योंकि हमें AC इक्वल टू AD गिवन है, AC AD गिवन है, AC एंड दिस इज AC AD. देखिए जो हमें गिवन है वो ही ट्रायंगल्स को हम यहाँ पे लेंगे. तो देखिए, तो एक तो ट्रायंगल हमें AC गिवन है और एक AD गिवन है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल्स कौन कौन से लेनी पड़ेंगी? ABC. वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल ABC एंड सेकंड इज ADE. इन बोथ ट्रायंगल्स कौन कौन से एंगल हमारी साइड्स आ रही है? AC, AD, AB एंड AE. चारों ट्रायंगल साइड्स आ रही है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए एंगल BAD, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, ठीक है, तो इसमें हमें ये एंगल्स ABC में ये पूरा एंगल हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा EA, ये वाला एंगल जो है हमारा EAD के. लेकिन
इन दोनों इन ये वाला जो हम एंगल्स लेंगे, ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल गिवन नहीं है हमारे पास गिवन है ये एंगल BAD एंड EAC, बीच वाला जो ये छोटा एंगल है ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो इफ वी टेक ये दीज टू ट्रायंगल्स ABC एंड EAD, देन व्हाट अबाउट दिस, इसका हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इससे प्रूव करने के लिए, इस पूरे एंगल को लेने के लिए, क्योंकि ये एंगल तो इक्वल है नहीं, जबकि हमें पूरा एंगल चाहिए होगा ट्रायंगल ABC में, तो थोड़ी सी हमें इक्वेशन बनानी होगी। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल राइट एंगल BAD, एंगल BAD ये एंगल है, प्लस एंगल DAC और ये छोटा एंगल, प्लस एंगल DAC। देखिए हमें गिवन क्या है, BAD EAC गिवन है। एक बार इसको जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। नाउ व्हाट वी विल डू, एंगल DAC, we will add angle DAC in both sides. How? Angle BAD plus angle DAC equal to angle EAC plus angle DAC। ऐसा क्यों किया, देखिए एंगल BAD, if we add angle BAD plus angle DAC तो क्या होगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारे पास, एंगल BAC। क्लियर? इफ वी ऐड इन दिस एंगल EAC, इस एंगल में इस एंगल को ऐड करते ही पूरा एंगल आ जाएगा, ये वाला EAD, एंगल EAD। ठीक है, इसको हम पॉइंट कर देते हैं 1। नाउ in triangle, now we will take two triangles in triangle ABC and triangle ABC and triangle AED और ADE, कुछ भी लिख लेंगे। अब देखिए ABC and ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB of triangle ABC is equal to AD of triangle ADE। तो यहाँ लिखेंगे हम AB, देखिए AB इक्वल टू AD गिवन है हमारे पास, AB इक्वल टू AD। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हो गई, ABC की होगी हमारी AD ट्रायंगल, सॉरी साइड हुई AB, एंड ADE ट्रायंगल की साइड हुई AD। तो दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है यहाँ पे हमें, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे AB इक्वल टू AD, दिस इज गिवन। नाउ एंगल देखते हैं, एंगल BAC, विच एंगल, BAC, दिस एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, इस एंगल के इक्वल। क्लियर? तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। कैसे हमने किया ये, बाय 1, क्योंकि 1 में हमने प्रूव किया भी, बाय 1 जो हमने इक्वेशन ली है वो यहाँ प्रूव किया, ये वाला दिस वन। ठीक है, तो इसे हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्या, we have taken side, then angle, then again side, AC equal to AE, AC of triangle ABC and AE of triangle ADE। क्लियर? तो लिख देंगे एंगल, सॉरी साइड AC equal to AE which is given again। So triangle ABC congruent to triangle ADE by side angle side rule। Clear? Triangle ABC is congruent to triangle
ADE। क्लियर। अब प्रूफ क्या करना है, BC इक्वल टू D, BC इक्वल टू D by CPCT। If two triangles are congruent, then by CPCT rule, BC equal to D. Now we can say BC equal to DE by CPCT. Hence proof. Thank you for watching. Let's meet in the next video. Till then, be happy, stay healthy, and keep connected to Maths Palace.